बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल की शान। मैं अनूप सर से निवेदन करूंगी कि वो मंच पे आए। ताली बजाने में कंजूसी लग रहा है। हाथ भी जरा साथ ना ऐसे माइक में कान में आवाज नहीं आ रहा सिस्टम में आता है। Hello. A very warm good evening to all. Once again, I wish you a very happy New Year 2025. I am very happy to stand here today to share a special journey of our hospital. Dr. Avinash look a dream 4 or 5 years ago to head up our hospital while working in a government job. While working in a government job, we all know government job is a very secure job and very limited. And in a government job, it is a very difficult decision to quit a government job. Apart from this, Dr. Avinash is a dedicated for give him our dream so that he quit his job and he left the repetitive job especially for the people of this region. Usually we took mostly the doctor moved from the city. Usually we look doctor move from the small city to for a bigger cities and for their our comfort as well as for the child education. And Dr. Avinash sacrificed their child education as well as family comfort and set up a hospital in the remote area that is called Rampur. And despite all these challenges, they decided to follow our dream. And today I am happy to tell you that our hospital completed 1 year of service to the community. I am eventually grateful to everyone has been the part of this journey and heartfelt thankful to the staff and the patient management for their support. And I felt very grateful for the support and the positive feedback that community has given us in the 1 year. We look forward to many more years of achievement with our patients. Thank you. Thanks a lot. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Good evening, Namaskar. Thank you so much for coming, joining this event, this night with us, Avinash Eye Hospital. तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी जर्नी से, जो मेरा विजन रहा है, जो हमारा विजन रहा है। इस सीजन में आप सबको पता है, आई से रिलेटेड किसी भी हेल्थ की फैसिलिटीज अभी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। इस एरिया से पहले हमारे जो पेशेंट हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए बहुत दूर मूव करते थे, जिसके लिए उनके पास बहुत सारा टाइम चाहिए होता था, बहुत सारा पैसा भी उनका लगता था और अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। मैंने अपनी फैमिली में देखा, अपनी सराउंडिंग में देखा, तो छोटी छोटी जो बीमारी, छोटी मर्ज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। IGMC शिमला में एक हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, बट वहाँ पे वो अप टू द मार्क जिस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वो नहीं थी और वहाँ से कई पेशेंटों के बैड रिजल्ट्स के साथ पेशेंट वापस आते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब मेरी MBBS मैंने कंप्लीट किया IGMC शिमला से, देन आई डिसाइडेड, मेरा पहले से ही शौक था कि मैं कुछ आईज में फाइन सर्जरी पहले से पसंद थी, तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए आगे। भवन नगर में जब मैं पोस्ट MBBS में जॉब करता था, देन फॉर्चुनेटली जॉब के बाद विद इन 1 year ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर MBBS आई गॉट मैरिड एंड सपना, शी इज माय वाइफ एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड मी कि चलो हमें मेरा सपना था मुझे PGI से ही करना है और कोई सेकंड ऑप्शन मेरे पास लाइफ में नहीं थी कि IGMC से मैंने ये IIM में मैंने MS करना है या कुछ करना है। तो शी ऑलवेज सपोर्टेड मी कि नहीं तुम्हें PGI ही जाना है। तो कई बार ये टाइम आता था कि जब PGI की स्पेशली तैयारी कर रहा था, मुझे खाना भी बेड पे मिलता था, मेरी सिटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी थी पढ़ने में, तो मैंने सपना को भी बोला था कि मैं बात भी नहीं करूंगा। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं बेड पे बड़ा रहता था स्टडीज करते हुए, खाना भी मुझे वहीं पे मिलता था और पेट भी वहीं से उठ जाता था। तो इस तरह का सपोर्ट रहा है एंड फॉर व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल टू माय बेटर हाफ। Then when finally I cracked PGI का जब एग्जाम क्लियर हुआ, we went चंडीगढ़ में, PGI चंडीगढ़ में। वहाँ की भी जर्नी बहुत आसान नहीं थी। मॉर्निंग 6 o'clock 6 बजे से काम स्टार्ट हो जाता था और रात के 12 बजे, कई बार 1 बजे 2 बजे में वापस आता था। तो उस टाइम भी एक जो सपोर्ट रहता था, खाना खाने का मेरे पास टाइम होता नहीं था, तो एक उसमें थर्मस में बनाना शेक लेके सपना रेडी करती थी और उसके साथ ही, क्योंकि PGI दैट इज टोटली डिफरेंट लेवल। वहाँ पे कुछ टाइम में तो ऐसा लगता है कि यार मैं आया क्यों यहाँ पे, तो वो फीलिंग्स भी आती है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड इमेजिनेशन। दिन हफ्ते महीने ऐसे निकल जाते हैं, अंधेरे में हॉस्पिटल जाओ, अंधेरे में बाहर निकलो, एंड द लेवल ऑफ एक्सर्शन। तो वो सब करने के बाद फाइनली वी मेड इट आउट, 3 साल वहाँ पे निकले हमारे। देन उसके बाद फिर आई केम बैक टू रिकॉम्पियो। हमारे डिसीजंस यही थे कि हमने अपने एरिया में जाकर सर्व करना है। अदरवाइज PGI से जब आप कोई कोर्स करते हो, PGI का जब टैग लग जाता है, तो वेरी फ्यू पीपल कम बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, इवन अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास काफी अच्छी थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अब्रॉड में, कोई सिटीज में सेटल्ड है।
देन वी डिसाइडेड, हमारा कंबाइंड डिसीजन था कि नहीं हमें किन्नौर जाना है वापस। फॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, किन्नौर में पोस्टिंग भी हुई, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, स्टिल अगेन वहाँ पे जाने के बाद फेको मशीन एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मिल गई थी हमें, बहुत सारा काम हुआ वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट फिर अल्टीमेटली सूनर और लेटर ये लगता है कि आप अपने आप को एक, जब गवर्नमेंट सिस्टम में रहते हो एक सर्टेन लिमिट पे आप फिक्स हो जाते हो, उसके आप बियॉन्ड ग्रोथ नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आपका काम, क्योंकि वहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड स्टाफ रहता है। तो देन फाइनली अगेन हमने फिर से डिसीजन लिया कि यार करना तो हम अपने लेवल पे और अपना एक हॉस्पिटल प्लान करेंगे, सो दैट कल को कोई भी गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस ना रहे कि ये मशीन नहीं है या फिर स्टाफ नहीं दे सकते। तो फाइनली वी अगेन मेड अनदर प्लान कि हम ये प्लान करते हैं, विच इवेंचुअली गॉट सक्सेसफुल, और उसमें हमारा पूरा साथ रहा अनूप जी का, शुरू से लेके जो भी, जब हमने प्लान एग्जीक्यूट किया फाइनेंशियली एज वेल एज प्लानिंग। जो हॉस्पिटल का जो नक्शा देख रहे हो आज आप, दैट इज द बर्थ ऑफ अनूप जी's माइंड। जो आपके रिसेप्शन से लेके वहाँ कौन सा स्टोर लगना है, ऊपर कौन सी लाइटें लगनी है, इन चीजों में मास्टर है, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, कहाँ से एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा कैबिन कैसा बनना चाहिए, इन चीजों में इनका नेवर एंडिंग सपोर्ट रहा। शायद ये हॉस्पिटल पॉसिबल भी नहीं होता अगर अनूप जी का साथ नहीं होता उस बीच, बिकॉज आई वाज बिजी, मैं आगे फर्दर स्टडीज परस्यू कर रहा था। सपना भी हमारी जो बेबी हुई थी सेकंड आर्या, उसके साथ बिजी थी, तो उस बीच ये सब सारा काम ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इवेंचुअली वी स्टार्टेड लास्ट ईयर 15 जैन को। आज तो इस बात के में कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एक छोटा सा सपना जो देखा था वो दैट हैज कम इनटू प्ले, जो रियलिटी में जो रियलिटी है हमारे सामने, और हमारा छोटा सा स्टार्ट है, लेकिन फ्यूचर में अभी और हम आगे ग्रो करेंगे। और एक साल में वी शुड बी वेरी प्राउड ऑन आवरसेल्व्स। एक साल में हमने जो चीजें अचीव करी है, दैट इज लाइक रॉकेट, स्काई रॉकेटिंग। एक ग्रोथ होता है, इस तरह से ग्रोथ होती है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर पॉज, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। हमने शुरू से इस तरह की जर्नी अचीव करी है, इन नंबर्स ऑफ पेशेंट्स, इन नंबर ऑफ सर्जरीज, है ना। और अंकल आंटी जी का भी हमने हमें पूरा साथ रहा है शुरू से लेकर अभी तक। जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चली थी तो अंकल रात दिन वहाँ खड़े रहते थे लेबर्स के साथ काम करवाते हुए। तो अंकल जी बाहर ही निकल गए थे, वापस आ गए। तो अंकल का बहुत साथ रहा है ठंड में। पिछले इसी सेशन में पिछली बार सर्दियाँ ज़्यादा थी, इन्हीं विंटर्स में सारा हमने काम फिनिश किया। एक टाइम स्टेज तो ऐसा आ गया था, हमें लग रहा था कि काम पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि तो होने वाला ही नहीं है ना अंकल जी, होने वाला ही हो ही नहीं सकता। 15 तारीख को ओपनिंग की डेट है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, चाहे अंकल हो, चाहे अनूप जी हो, चाहे मैं हो, चाहे सपना हो, हम सब ने मिलजुल के काम किया और आप सब लोगों का साथ रहा। इनिशियली जो हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, सो में प्रिंसी, अनफॉर्चुनेटली प्रिंसी क्या हेल्थ इश्यूज थे उसके, तो वो उसको जाना पड़ा। तो मैं उसको मिस करता हूँ। जिनके साथ हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, उसने अकेले 150 की ओपीडी देखी थी। तो इस तरह से फर्दर आगे बढ़ा, अच्छे लोगों का साथ आता रहा। कई बार मजबूरियाँ रहती लाइफ में, तो बेस्ट पार्ट यही है कि आप सब लोग दिल खोल के काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो मेरा विजन है, जो जिस तरह की मेरी थिंकिंग है, आई एम नॉट इनटू अ कॉर्पोरेट बिजनेस। आज शायद आप सबको पता नहीं चल गया होगा, मुझे ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना है या पेशेंटों को देख नंबर्स आ रहे हैं तो उनको अनड्यू ट्रीटमेंट्स देने हैं। वो एक मेरा पहले से एक ड्रीम रहा है। जो एक मेडिकल प्रोफेशन है, उसको मेडिकल प्रोफेशन की तरह ही लेना। क्योंकि आज के टाइम में मेडिकल प्रोफेशन बहुत लाइक डिफेम हो गया है, टेम हो गया, उस पर दाग लग गया है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, जरूरत नहीं भी हो तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो रही है, अननेसेसरी दवाइयाँ आपको मिल रही है ना, अननेसेसरी सर्जरीज हो रही है। तो जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, जो आज के टाइम में इतने नंबर्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट थिंग, फेथ है हमारे ऊपर, और इसी फेथ को हमें आगे रिटेन करना है, अच्छी सर्विसेज देने हैं। कई बार होता है हमारे पास बहुत भीड़ है, हमें कुल मिला के मेडिकल कॉलेज लेवल का काम कर रहे हैं। जो वंशिका ने देखा होगा सोलन में, एमएमयू में देखा था, वहाँ पे भी इतने पेशेंट नहीं होंगे जो हम यहाँ पे इस लेवल का काम कर रहे हैं। उसमें ऊंच नीच कई सारी चीज़ें होती रहती है, पेशेंट इरिटेटिंग होता है, कई घर से परेशान होता है, कहीं को जल्दी जाना है, तो मैं हर पेशेंट को एक
अपनी तरफ से थोड़ा सा काम डाउन करना है, उनको आराम से बैठो, हर जगह हर लेवल पे कोऑपरेट करना है। वो हमारा एक फाइनल जो है मोटिव रहेगा, अपने पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना। बाकी क्वालिटी सर्विसेज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक स्टाफ का मेंबर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है और फर्दर जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो फर्दर और बेस्ट देता रहेगा। बाकी हमें बिल्कुल नहीं है कि हम एक और सेंटर कहीं और खोलना है, जिस तरह के कॉर्पोरेट चेंज चले रहते हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, तो वो उससे रिसेंटली कुछ बात हुई थी, बोलता कि यार तेरा तो अच्छा सेंटर चल गया, अब एक और सेंटर चेंज खोल दे, वहाँ के लिए हम स्टाफ हायर करते मुझे एक ही हॉस्पिटल चलाना है और जिसमें क्वालिटी सर्विसेज मिले और जिसमें बेस्ट सर्विसेज मिले। तो इन ही हम ड्रीम्स के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और एक साल के अंदर जो अचीवमेंट्स हुए हैं, आई होप एंड आई विश हम आगे इसी तरह से ग्रो करते रहे फर्दर और हम बेटर एंड बेटर एंड बेटर अचीव करते रहे। थैंक यू। Thank you, Dr. Abhinash, for your inspiring words. It's time to honor visionary behind this incredible institute और hospital. और मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि अविनाश सर के लिए, सपना मैम के लिए और अनूप सर के लिए और सारे स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए और स्पेशली अंकल के लिए ताली हो जाए एक बार फिर से। मैं सपना मैम से अनुरोध करूंगी कि वो भी इस उपलक्ष्य में कंजम करें। Guys, please. मैं यही बोलना चाहूंगी, एंजॉय करो, अच्छे से खाओ पियो। अच्छा अचीवमेंट्स किया है। इस खास दिन पर हम ये भरोसा रखते हैं कि हम सब मिलकर साथ में चलकर आगे ऐसा ही कार्य करते रहेंगे और अगली वर्ष इस डाटा से हम दोगुना करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं सभी स्टाफ से आग्रह करता हूँ कि वो मेरा इसी तरह साथ देते रहें। और मैं सर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जली को आ कहते हैं, बुझी को रा कहते हैं, ऐसा हॉस्पिटल बनाया उसे डॉक्टर अविनाश कहते हैं। में मजा नहीं आ वैसे तो मेरा सारा जो स्टाफ है, सारी टीम टैलेंटेड है, तो मैं भी अपना छोटा सा टैलेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर में बहुत बड़ा टैलेंट है, ये बात मैं बोल देता हूँ। छोटा नहीं। हाँ, तालियां दो भाई, तालियों मजा नहीं आ रहा है। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस बातें होती है किनारे, खींची है लकीरें ज़मीं पे तरना खींचो देखो, बीच में दो दिलों की दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी दर्द तो हमको यहाँ एहसास उसके सकमों का हो के अपना भी दिल भर आए रोए आके। Cause I was waiting for another day, another dawn, somewhere we have to find a new way to peace. Cause I was waiting for another sign, another call, somewhere we have to find a new way to peace. दूरी क्यों दिलों में रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, प्यारी है जिंदगी है प्यारा जहां, रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं यहाँ पे, लेकिन टूटने के लिए बस एक ही लम्हा, इश्क दवा है हर एक दर्द की, ज़ंजीरे इश्क है हर एक रिश्ते की, इश्क सारी हदों को लड़ाए, इश्क है जो सारे जहां को मिला भी दे, इश्क है जो सारे जहां को अमन भी दे।
इश्क से है सारे आलम की। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे लिए सारे, किस्मत तो होती है फिर टकराए। खिंची है जमीन इस जमीन पे पर नहीं जो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवाने, बीच में दो दिलों के ये दीवाने, बीच में दो दिलों के ये दीवाने। थैंक यू। मेन इंजॉयमेंट है गेम छोड़ो। गेम्स कर लेते हैं। ताना बजाओ भाई, ताना बजाओ चिल्ला। वाह वाह शाबाश। पीछे से ना ये तो बैठे हैं अपनी डांस का लिए, ग्रुप डांस ये। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आदरणीय सर डॉक्टर अविनाश जी, सपना ग्रुप से मैं क्या शेयर करूँ आपके साथ। मुझे वो समय याद आता है कि जब हमने दिसंबर में मिले थे सर के साथ, तो हॉस्पिटल बन ही रहा था, यानी कि उसकी दीवारें भी नहीं बनी थी। उस समय सर के साथ रहना हुआ, तो सर के अंदर इतना एनर्जी मैंने देखा है। यानी कि ये 11-12 जनवरी की बात है लास्ट ईयर, तो उस समय दीवारें गिरी थी। तो सच में ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग ये बना पाएंगे, लेकिन उनका जो साहस था, हर वक्त एक एनर्जी वाला जो रूप देखा, तो बहुत ही अच्छा था। तो 15 में फिर हो गया। तो बाकी मैं कुछ क्या शेयर करूँ, ये जो सर कह रहे थे कि हमारा ग्रोथ ऐसे हुआ है, वैसे ही हमारा फाइनेंस में भी ग्रोथ ऐसे हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना हुआ है। तो थोड़ा सा छुपाने लगता है। तो बाकी सर का बहुत ज़्यादा साथ मिला। मेरा अपना लाइफ का तो ऐसा है कि जब मैंने एग्ज़ाम देता रहा, बैंक के PO क्लैरिकल पता नहीं क्या क्या निकाल के रखा, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लगता था मुझे कि पता नहीं मेरा कहाँ पे भगवान ने लिखा है। आज कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो मम्मी कहते थे कि तेरे लिए बोला भगवान ऊपर से तेरे घर में नहीं आएगा तुझे नौकरी देने। तो मैं बोलता था नहीं आएगा। और मुझे नौकरी मिली है, तो ऐसा ही है। तो सभी का
Moyale Wankali Gota Kulimo Wankali Gota Kulimo Yale Wankali Gota Kulimo Konali Zoli Yang Hopayale Konali Zoli Yang Hopa Konali Zoli Yang Hopayale Konali Zoli Yang Hopa Mullunga sana tanga zoyale Mullunga sana tanga zo Mullunga sana tanga zoyale Mullunga sana tanga zo Shumkola dunga
cuma ko lalu ngakali yang धन्यवाद। ये शायरी स्पेशल मैम और सर के लिए है। ना जाने कैसी नज़र थी उनकी, ना जाने कैसी नज़र थी उनकी, कि जब से उस नज़र ने इस नज़र को उस नज़र से देखा, जब से उस नज़र ने इस नज़र को उस नज़र से देखा, खुदा कसम तब से इस नज़र ने उस नज़र से किसी को ना देखा। थैंक यू सो मच। तालियां हो जाए, तालियों में कमियां करे है ना। तुझे देख कर है जगना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मेरी ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, मेरी ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। कब से है दिल में अरे वक्त ये कहे, कब से है दिल में अरे वक्त ये कहे, इनको तो सुन लिया जा, चाहत के रंग चढ़ा जा, इनको तो सुन लिया जा, चाहत के रंग चढ़ा जा, करना कभी तू मेरा मान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको हमारे जो हॉस्पिटल काज फाउंडेशन डे है उस सबकी हार्दिक शुभकामनाएं, स्पेशली डॉक्टर अविनाश सर और मैम। और वैसे मैंने स्पीच याद तो नहीं किया है, सडनली बलजीत ने मुझे बुलाया तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब मुझे इतना टाइम तो नहीं हुआ है अभी, मतलब वर्क करके या फिर 7-8 ईयर्स ही एक्सपीरियंस रहा है, पर जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मैंने सर के हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर अविनाश सर के, वो एनवायरनमेंट मुझे नहीं लगता कि कहीं भी देखा मैंने आज तक। जिस तरह से सर हमें सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे फ्यूचर को लेके अगर कोई भी मतलब ऐसा रहता है कि हमें कोई हिचक नहीं रहती सर के सामने, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टाफ को ऐसा लगता होगा। मतलब सर हमें एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं और पूरे 1 ईयर में मतलब मुझे सर को भी पता है मुझे क्या पहले था मेरा मतलब ओटी में या फिर हर चीज़ में, क्योंकि आई में मेरा सबसे पहला रहा है सर के साथ, तो मतलब मैं खुद को देखती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। और ओपीडी में भी बहुत सारे चैलेंजिंग आते हैं, सर के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली मैंने कभी आई को इतना मतलब अपनी जो भी मेरी स्टडी रही है मैंने सीरियसली इतना नहीं सीरियस लिया था, बट मुझे अब लगता है कि मतलब मैं कंडीशन देखती हूँ, जिस तरह के पेशेंट आते हैं, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ सर से। सर मुझे बहुत कुछ बताते हैं और स्पेशली मैं सर को मतलब
जिस तरह से सर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, समझाते हैं, और मतलब एक रहता है कि सर जिस तरह जितनी पेशेंट को नीड है उतना ही मेडिसिन देंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वो चीज़ मुझे सर की बहुत बेस्ट लगती है। मैंने बहुत से डॉक्टरों के साथ मतलब असिस्ट किया, हर चीज़ किया, सर्जरी में भी, ओटी में भी। सीरियसली मैंने आज तक इतना पोलाइटली डॉक्टर कभी भी नहीं देखा जिस तरह का सर का रहता है। अच्छा भाई, हमने मतलब जो जब भी ओटी में काम किया, सीरियसली हमें हाथ में इंस्ट्रूमेंट से मतलब मार भी पड़ी है सीनियर से, बट सीरियसली सर हमें इतना अच्छा कराते हैं। बाकी नीरज को भी पता है हम सब कितना सीखते हैं सर से। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सर ने कोई भी कमी रखी है इस पूरे 1 साल में हमारे लिए। तो सर वैसे हम आपके जितना तो नहीं कर पाते, पर आगे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो कोशिश करेंगे सर आगे आपके साथ ही रहेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। वैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है, पर मैंने एक गाना गा लेती हूँ। तालियां बजा दो गाने के लिए। शिमले दीवानी चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, माई मेरी शिमले दीवानी चंबा कितनी दूर है, चंबा शिमले की बसना कसौली की बसना, शिमले की बसना कसौली की बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माई मेरी शिमले दीवानी चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, लाइया मोहब्बता दूर दराजे, लाइया मोहब्बता दूर दराजे, अखियाँ तो होया कसूर है, अखियों तो होया कसूर, माई मेरी शिमले दीवानी चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। थैंक यू। कोई भी पिंडी का साथ देना चाहते तो आइए प्लीज। एक गाना